Vibrations of oneness. They a wish in tangible form to infuse tranquility. I hope that each viewer will tilt the existence graph towards a joyful ever meander in confused direction to obstruct the vision of the mind. Energy in rhythmic phrases, pirouettes in specific places, bodies in becoming attire, movement and flashes of the present, an image from the past, beautiful illusion, varied horizons, accessible environs, arresting tones in images of meaning, a captured moment in time. Good evening, friends, and welcome to Vibrations of Oneness. Sydney Lobo prefers to take the stairs to all the levels and floors that he wishes to ascend. Would of course not allow him to savor the flavor of the experiences along that journey. Sydney befriended brushes and paper and color many moons ago. At the age of 4, over the years, he has trained in technique and familiarized himself with art vocabulary. And thank you so much, Madhuri Bhatia, for having given a beautiful introduction to our entire inauguration of your painting exhibition. So thank you so much, and Sydney, you may be seated now. So, ladies and gentlemen, welcome to the debut painting exhibition of a brilliant artist, Sydney, and welcome all the esteemed guests for having joined us today. It's indeed a pleasure to have all of you.
exercise. That's effective. The way they are singing. What's your good name? आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार. कहाँ के हैं आप? बम्बई के दिल्ली का बहुत अच्छा गा रहे हैं. वेरी गुड. मैडम आपका? कविता. कविता. अरे वाह. रियाज करते हैं? जी सर. वेरी गुड. बहुत अच्छा गा रहे हैं. थैंक यू सर. Thank you so much. And now, Manish ji, he gave to me because he is there from the same community in Kochi. So we started in Kochi. And neighbor also. So he met my son also. So you have to go to work there. It's nice, very good. But she looking at the paintings and everything is good. I like this painting. You do. Yes, sir. So thank you for calling me here. And here Mr. One of the genius here, Sudesh Bhosle, very white person, very mischievous. Yeah, calling him. So happy to felicitate and we have the show. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Good evening. Thank you so much. To see now, there's a lot of vibrations. Yeah, good. Thank you so much, Anand. Can you request if I can come towards this way? There's a graffiti. No worries. So if you could just... Excellent. So Prabha. Wait. On his behalf, I'll be writing. She's also painted. She also painted. I have signed. लखा दिया sign कीजिए ना. Ramesh, थोड़ा खुदा लगे. please, ma'am, kindly join us. We'll be going to Nayan Foundation. Need to write a message for Nayan Foundation. Hello. Sign. अरे भाई ये इधर कैमरा डाल रहा है. अरे पीछे ये वीडियो तो उस तरफ जाना फिर वो साइड जाना. तू दिमाग खराब मत कर. मैं कर गया. This too. Something great. Yeah. Sign. Yes. आपको मालूम है इससे बैठने? Yes, I know. You good. Thank you so much, Sudesh. क्या करूँ? कितने बगल कितने बगल से? Thank you, sir. Mr. Sudesh is a great painter and he makes beautiful paintings. And his father used to make all the full body paintings. So whenever we are in the train and empty, so he start painting in the miniature for beautiful work with us. और बोलेंगे आप कुछ? अच्छा है. Thank you.
so much for sitting. We have Ramesh here. सर थोड़ा आगे सर थोड़ा आगे थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे वीडियो सेंटर का फोटो काट चलो रोल Madhuri, please. Deepak ji. और पीछे सर सर सेंटर So we have Deepak as well. Deepak ji. Deepak ji, please join us. Deepak ji, please join us. सर सेंटर सेंटर Thank you so much, sir. सर हियर सर इधर सर लेफ्ट साइड सो सर लेफ्ट दीपक सर प्लीज आइए अरे सिंडी सर आप भी आइए एक एक पीछे चलो अरे लेफ्ट साइड सुदेश सर समोर सर समोर इकडे सुदेश सर सर आनंद यहाँ पे थैंक यू सर हियर सर बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कुछ नए फील्ड है बिकॉज मैं ज़्यादा पेंटिंग में मेरी बहू पेंटिंग करती है मगर ज़्यादा हम लोग गाने बजाने में रहते इधर ध्यान नहीं देते लेकिन आर्टिस्टिक वर्क है इट्स सो ब्यूटीफुल एंड गुड एफर्ट फॉर दिस 9 फाउंडेशन एंड एवरीथिंग हाँ ना सोल तो पेंटिंग में तो खो जाता आदमी जो पेंटिंग करता है वो वहाँ पे हो सीमा उस दृश्य से जब देखता है तो अलग चीज़ होती है ना और तब दुनिया को हम लोग जो करते रहते हैं दिन भर का उसको छोड़ के इसमें निकलना पड़ता है यू हैव टू कम विथ समथिंग न्यू आइडियाज़ बाय पेंटिंग ओनली नॉट टू स्पीक दैट्स द थिंग एंड देयर आर सो मेनी पेंटिंग विच कैन शो यू समथिंग दे से समथिंग व्हेन यू स्लोली लुक एट देम यू कैन फाइंड समथिंग ग्रेट पेंटिंग की बात करें तो सबसे अच्छा पेंटिंग आपको मैंने पूरा देखा ही नहीं अभी लेकिन मुझे पहले आते ही फर्स्ट ग्लांस में मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा सुदेश जंग टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे सर जो गाना हमने सुना है बहुत अच्छा गाया इन्होंने डबल वॉइस में गाना इतना विदाउट एनी नहीं तो क्या होता कि ऊपर की बीच में कहते कभी बेसुर हो जाएंगे ऐसा भी नहीं हुआ किताब भी नहीं है उनके पास इसलिए और भी अच्छा होता है काम इसलिए अच्छा हाँ सॉरी हाँ हाँ बदलते दौर के साथ ऐसा है ना कि टाइम बदलते जा रहा है बिकॉज वी बिकम वेरी फास्ट हर चीज़ बटन दबा के सब सामने मिल रहा है तो नॉलेज तो मिल रहा है गूगल में भी हमको नॉलेज मिल जाता है लेकिन उसकी फील जो है जैसे पानी है H2 हम बोल देंगे लेकिन बिना पिए पता नहीं लगेगा पानी क्या है तो ये टेस्ट की बात जो है अनुभूति की जो बातें हैं वो यहाँ दिखती है जो देखा है उसको विजुअलाइज करना उसको फिर उसको उसमें सजाना उसको जिंदा करना ये सब बातें अलग हैं सर बात करते हैं गानों की संगीत की बात करते हैं हाँ आपके जमाने में जो आप गाने गाया करते थे या किशोरदा गाया करते हाँ थे या रफी साहब उन गानों की बात करें तो उनकी जवानी आज भी बरकरार है ऐसा क्या क्या जादू है? इसका रीज़न ये की है कि उसमें पोइट्री थी लेने वाले जो थे वो बहुत अच्छे समझदार थे सुलझे हुए सब्जेक्ट होते थे तो उसमें कहानी में कुछ कहना होता था जैसे अभी सरस्वती चंद्र छोड़ दी सारी दुनिया किसी के लिए फिर अभी आमदनी अठनी गाना था हमारा 3 बहुरानिया में जो आज का ज़माना जो चल रहा है आमदनी अठनी खर्चा रुपया तो इस तरह से सीख दी जाती थी उसमें कुछ कहा जाता था जीवन की जो जीवन में हंसते हंसते आप समझ जाओ तो आज के गाने जो हैं रिदम के लिए अच्छे हैं नाचने के लिए अच्छे हैं तो पोइट्री का इतना कोई महत्व नहीं दिया जाता उसमें ऐसा लग रहा है मुझे एंड थिंग्स आर बिकम चेंज अब जो यंग जनरेशन है दे वांट एवरीथिंग फास्टर फटाफट चाहिए आज के दौर में जो संगीत जो बन रही है उस पर आप कुछ कहना चाहिए जिस तरह से संगीत क्योंकि पसंद आता है लोगों को
तो नवी जनरेशन है उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका एक ही लगा कि थोड़े दिन में वो उसको भूल जाते हैं और नई के लिए आते हैं। दे वांट एवरी टाइम न्यू थिंग्स, जो दिल में बसाने वाली बातें नहीं रहती। ऐसा लगता है नाचो कूदो भाग जाओ, ऐसा लगता है। अच्छा, ये चाहते हैं कि पंचम साहब पर एक बायोपिक बने, आप क्या क्या कहना है इसमें? सॉरी, पंचम साहब पर एक बायोपिक बने, आप क्या क्या कहना है? अच्छा है, होना ही चाहिए। ही डिजर्व एवरीथिंग। ही वॉज वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव, और नेचर के भी बहुत अच्छे थे। तो उन पर बने तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना, कि उनके जीवन में क्या था, कैसे थे, इतने सिंपल होते हुए कैसे होता था। जैसे हम लोग शराब नहीं पीते, तो मुझे अमेरिका में एक ने पूछ लिया कि आप शराब नहीं पीते तो ऐसे गाने अच्छे कैसे बन सकते हैं। मैं बोले शराब पीना ज़रूरी है क्या? बोले बिना गाने नहीं बन सकते। तो मैं बोले तुलसी कबीर मीरा ये शराब पीते थे क्या? वो अंदर की फील थी ना, उतने तो अच्छा काम हमने भी नहीं किया। तो ये फीलिंग की बातें सब। आने वाले समय में पिक्चर में क्या आपके द्वारा संगीत का कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आजकल इसका मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ, हर वक्त आप पार्टी में जाते हैं 3-4 दिन, बड़ा मज़ा आता है। चौथे दिन आप घर पे आके बोलते हैं अभी आज कुछ घर का खाना खिलाओ, तो सेटिस्फेक्शन तो उससे बात से होता है कि जो दिल को छूता है, आराम को देता है, सब कुछ है। तो ये दौर भी थोड़ी देर में, अभी जो म्यूज़िक बन रहा है यंगस्टर्स के लिए बन रहा है, सिर्फ नौजवान जो है नाचना कूदना इसी के लिए। थोड़े बड़े होते हैं वो बदलेगा, ठहराव आएगा कहीं ना कहीं। तो ठहराव आए तो फिर वही बातें आएंगी फिर से कुछ कंपोजिशन सुनने को मिलेगा कि है। कंपोजिशन आपको सुनने को मिलेगा? अल्लाह, अभी ऐसा नहीं कि अभी का जो म्यूज़िक हो रहा है वो अगर हम भी करने बैठे तो उनको वही लेने वाला वही है कि जिसको डम्बर चाहिए, तो फ़र्क पड़ जाता है। हम लोग भी करते थे उस ज़माने में, डिस्को नंबर भी आते थे और उसमें पोइट्री होती थी, कुछ कहने का होता था, रिदम होता था। जैसे हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग देखोगे, और कुछ बात नहीं कीजिए, थोड़ा सा ठहरो, ऐसी तरह से क्या बात करते थे। अब थोड़ा सा और हो गया, थोड़ा इसमें आ गए कि बच्चों को जो पसंद आता है वो करते हैं। जो होता है धीरे धीरे अच्छा वही रहने वाला है ज़िंदगी में, बाकी तो आता है और चला जाता है। थैंक यू। My exhibition is based mainly on vibrations, and vibration is a very holistic concept. And my inspiration is being from fingerprints. Yeah. So with that as my inspiration, I have developed these paintings. It's all line work which forms into vibrations, and vibrations form the physical reality. That's the whole concept. We can see that we can touch and we can also feel the lines everywhere. Yes. किस तरह की पेंटिंग किस तरह की कविताएं होती हैं और क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है? Most important is the concept. The concept is good if you concentrate on the concept, and then how you execute it and bring it out. Okay, and a lot of patience when you take a topic like lines, where you take on fingerprints, you got to work per centimeter. So it's a lot of work involved in it. It's just not a brush stroke. It's a lot of detailing that involved detailing in work. जितने भी हैं वो आप हाथ से ही करते Yes, yes. हैं। कितने सारे पेंट्स हैं, कोई आपका मनपसंद का पेंट, जैसे कि हमने देखा Tree of Life और भी सारे Yes. नेचर, Yes. किस तरह की पेंटिंग आपको सबसे ज़्यादा पेंट करना? It depends. Anything that strikes me, I work it up. Just anything that strikes me. It's like my favorite right now is the Agori Sadhu there. Now, basically, I didn't want it to look mythological. The Agori Sadhus look beautiful with a lot of color on their forehead and the silver beards and hair. But what I did was, I did the cobweb on his head to show, which talks about clearing the cobwebs of your mind. And it goes for a corporate organization where you think out of the box. So you blend you blend your traditions to the boardroom. That's it. So, that's it. Many renowned personalities have appreciated your paintings. So what let us know किस तरह का appreciation, best appreciation आपको मिला है? It was non-verbal. It was in the eyes and emotions.
it's vibrations again. Yes. Because there's certain things words cannot express, but you know, it's eye contact, and that expression on the face of that, it speaks volumes. Yeah. Thank you so much for coming over. तीन आर्टिस्ट है एक साथ तेजस थैंक यू। पहले तो मैं सिडनी लोबो जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इतने बड़े इतने सुंदर एग्जीबिशन में हमें बुलाया। बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और स्पेशली इनकी जो कलर स्कीम है वो देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और एग्जीबिशंस तो कई होते हैं, लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये नैन फाउंडेशन को अपने जो प्रोसीड्स हैं उसका कुछ हिस्सा वो देने वाले हैं। और आज इस एग्ज़िबिशन के बहाने आनंद जी भाई से भी मुलाकात हुई और एक एक पेंटिंग का उन्होंने हमें मतलब समझाया। और स्पेशली मैं खुद इस क्षेत्र में आने से पहले पेंटिंग करता था, तो मेरी रुचि बहुत है पेंटिंग में। मैं पहले पोस्टर्स पेंट किया करता था, तो प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर के मैंने पेंटिंग किए हैं, तो ये मेरा पसंदीदा विषय है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद की पेंटिंग का भी एक्सप्रेशन करूं? मेरी इच्छा तो है, लेकिन अब मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरी अब बेटी इस क्षेत्र में आई, श्रुति, जे स्कूल ऑफ आर्ट में। अब उसने ग्रेजुएशन करके अब मास्टर्स के लिए यूके गई है, तो वो कभी कभी जब सामने होती तो हम दोनों बैठ के पेंटिंग करते हो। बहुत जल्द मेरा एग्जीबिशन भी आप देखेंगे। हमारे आप जिंदगी में कितना हम लोग जो भी करते एक पेंटिंग ही तो है, हम जो भी बोलते वो एक पेंटिंग है। बस ब्रश और पेंट हाथ में आ जाए तो वो कैनवस पे आ जाता है, वरना हमारी ज़बान से एक एक चीज़ जो निकलती है वो भी एक पेंटिंग है। और पेंटिंग से हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। वो पेंटिंग का हर एक फिगर, हर एक कलर हमारी आँखों को, हमारे दिल को इन्फ्लुएंस करता है। तो अच्छी अगर पॉजिटिव पेंटिंग हो तो उसका पॉजिटिव असर हमारे इस दिल पे होता है। अच्छा, आने वाले दौर, आने वाले वक्त में आपकी संगीत को हम और किस प्लेटफॉर्म पर सुन पाएंगे? अभी तो फ़िलहाल मैं मेरे बेटे के साथ एक शो कर रहा हूँ, अमिताभ और मैं, जिसमें मैं अमित जी के सुपरहिट गाने और उनके डायलॉग्स पेश करता हूँ, जिसमें मेरा बेटा सिद्धांत भी गा रहा है। और अभी एक अमित जी का एनिमेशन एक सीरीज़ चल रही है डिज्नी चैनल पे, उसमें अमित जी की आवाज़ में दे रहा हूँ, जिसका नाम है अस्ट्रा फोर्स, जिसमें अमित जी का रोल है एनिमेटेड, तो उसकी आवाज़ में कर रहा हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि अमित जी खुद रुचि ले रहे हैं, वो गाने गा रहे हैं। जी, आप अगर उनकी गानों की सुरों की अगर बात करें तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? मैं कहूँगा कि अमित जी जो पैकेज है वैसा मिलना इस दुनिया में कठिन है। एक्टिंग कहिए, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में उनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई एक्सपर्ट होगा। और सिर्फ वो हर चीज़ जानते भी हैं और उतना ही मतलब डेडिकेशन के साथ हर चीज़ को परफेक्शन की तरफ ले जाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और जब वो गाते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। आजकल देखा जाए मौजूदा दौर के जो आर्टिस्ट हैं, जी, आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो खुद अपनी आवाज़ रखते हैं। इस बदलते दौर को किस तरह देखते हैं? ये वो स्टार्स जब गाते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है, वो गाना बिकता जल्दी है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते, इसलिए स्टार्स गाते हैं। तो दौर है, फाइनली फिल्में जो बनती है, प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाता है, म्यूज़िक जो बनाता है, वो पैसे कमाने के लिए भी बनाता है, तो वो अच्छा ही दौर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से म्यूज़िक को म्यूजिशियन के साथ पास रहे तो अच्छा है। थैंक यू।